स्वागत है तुम्हारा नए ब्लॉग में। अभी हम माम्स ट्रेन करने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 कुछ एंड थकान बहुत ज़्यादा ही है, बट जो करना है वो करना है। एंड उससे पहले एक चीज़, मेरे आर्म्स में बाइसेप बहुत ज़्यादा वीक हैं। मेरी आर्म्स में मेनली मेरे ट्राइसेप्स डोमिनेट करते हैं एंड मेरी बाइसेप्स कुछ है ही नहीं। इतना ट्रेन करता हूँ फिर भी ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना है कि जब पंप हो जाता है आर्म तो ट्राइसेप पे जो राउंडनेस आती है बाइसेप में राउंडनेस आती है, बहुत वो अजीब सा ही लुक देता है फिजिक को, आर्म्स को। बट क्या कर सकते हैं, मेहनत तो करनी ही है। एंड पता नहीं कौन सा डे है आज वर्ल्ड का, मैं भूल भी गया। इस वीक भी कोई चेंज नहीं किया है, नेक्स्ट वीक से करेंगे क्योंकि यार ब्लोटिंग को अवॉइड करनी है। हल्का हल्का इस हफ्ते हुआ था तो अभी अवॉइड करना है, तो नेक्स्ट वीक से बढ़ाएंगे। और अभी जाएंगे हर्ष के घर, सॉल्ट वाटर पीते हैं पहले ताकि जिम में बेटर पंप आए एंड फोड़ते हैं आज का वर्कआउट। नीचे रहो, नीचे रहो, पूरी सेना आ गई। आज क्या मार रहा है भाई? तुम बताओ क्या मार। ये देखो माउंट एवरेस्ट, माउंट फूजी। वाओ, वाटर रोड। लुक हाउ मच। अच्छा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नहीं, मुझे लगा क्या बता आप अपनी वीडियो में कहे थे कि एक चूतिया बोल रहा था, सेंसर कर दिया है उसकी आवाज़ को। तुम्हें भी दिखा दूंगा ब्लॉग में भाई, पहले अपनी वीडियो बना रहा था, तुम्हारी बनाऊंगा। ओह, फीचरिंग हर्ष चौहान। ट्रेनिंग माय फ्रेंड, माय आलसी फ्रेंड हु इज वेरी लुडूस। वो देखो इतनी सारी बसें। भाई कहीं सोचो ये वीडियो देख के कोई लड़की तुम्हें पसंद कर ले और वो आए अपने पोर्श एरिया आशियाना इंदिरा नगर गोमती नगर से ढूंढते हुए कि कहाँ है आइनॉक्स फिटनेस। जाऊंगी शाशु बेबी के साथ। शाशु बेबी की एस ट्रेनिंग के वो लूंगी। क्या लूंगी? ग्लूट्स ट्रेनिंग की टिप्स लूंगी। ग्लूटस मैक्सिमस को मैक्सिमस, अरे बहन चोद। भगवान बुरा मान के क्या? Oh yeah, skada yeah. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice. Niggas chatting with the gossip about. Niggas watching, ain't no hiding out. Smoking big dope when I'm riding out. You ain't getting what you lying about. It was first Vine, now it's the clout. Instagram with the hype about. Let a nigga gon' act up. Fuck around and bring them lions out. Who they saying gon' harm me? I keep something that on breathe. Bring major pain like the army. Just for the time we was starving. Yeah, stomach aches got me heartless. Yeah, I was jugging in and out the market. Hey, I ain't choose this lifestyle. This how it all started. Hey, now I can't sleep at night. 10 toes, I'ma stand through the fight. I can't sleep at night. 10 toes, I'ma stand through the fight. 10 toes, I'ma stand through the fight. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice, yeah.
yeah. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice. Niggas chatting with the gossip about. Niggas watching, ain't no hiding out. Smoking big dope when I'm riding out. You ain't getting what you lying about. It was first Vine, now it's the clout. Instagram with the hype about. Let a nigga gon' act up. Fuck around and bring them lions out. Who they saying gon' harm me? I keep something that on read. Bring major pain like the army. Just for the time we was starving. Yeah, stomach aches got me heartless. Yeah, I was jugging in and out the market. Hey, I ain't choose this lifestyle. That's how it all started. Hey, now I can't sleep at night. 10 toes, I'ma stand through the fight. I can't sleep at night. 10 toes, I'ma stand through the fire. 10 toes, I'ma stand through the fire. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, aiming right in my mind. Running up, niggas better think twice, yeah. भाई डिक्की बंद कर लो भाई सही से। भाई गाइस फिर से मिलेंगे। चलो भाई मिलते हैं भाई। बाय टाटा। ये लो अपना बैग पकड़ो भाई। सो वर्कआउट इज डन। बहुत बढ़िया आर्म्स डे था एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू से एक्चुअली, बस कुछ है ही नहीं। सो एक विन है हमारे लिए। हमने आज 3 साल बाद एक्चुअली शर्ट निकाल के पोजिंग करी। मैं जब से मुझे डिप्रेशन हुआ था तो उसके बाद से मेरी फिज़िक थोड़ी श्रिंक हो गई थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था। बट अभी जब से सही हुआ हूँ तो थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ ना अपने आप पे। अभी इस भी थोड़ा सा रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं, तो मैंने शर्ट उतारी एंड वही पोजिंग करी और बहुत अच्छा लगा कसम से। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पिछला कुछ टाइम बहुत ही ज़्यादा टफ था। एंड आर्म्स डे बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ। एंड तुमने देखे होंगे मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप बहुत ज़्यादा एकदम चुम्बेश्वरी हैं, और बाइसेप पता नहीं क्या है, कुछ है ही नहीं। बट मेहनत करते रहेंगे। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आर्म्स में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, लाइक मैंने देखा है 7-8 एक्सरसाइज करते हुए लोगों को, बाइसेप्स की एक दिन में, ट्राइसेप्स की एक दिन में। नेसेसरी नहीं है भाई, क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करो, क्वांटिटी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम हर एक्सरसाइज में तो अपना 100% नहीं दे पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जो आखिरी के जो रेप्स होते हैं ना, जब तक तुम उसमें मर नहीं रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है। सो मैं आपको पुश करना सीखो उस चीज़ में। तो रिगार्डिंग दिस यूट्यूब, देखो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मतलब बहुत बोलना पसंद करता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा तब पब्लिकली। मैं खुद से बोलूँगा, अपनी सेल्फ टॉक वैसे करूँगा, बट मैं इतना दिखाता नहीं हूँ किसी को। बिकॉज देखो, मैं जब से छोटा था तो मैं सचिन तेंदुलकर, लियोनेल मेसी जैसे लोगों को देख के बड़ा हुआ हूँ, तो इतना मेरे अंदर वो उस तरह का एग्रेशन नहीं है कि मुझे सबको दिखाना है बोल बोल के कि मैं कर लूँगा। मेरा भी उन्हीं की तरह माइंड सेट है कि भाई अपना सर नीचे रखो और काम करते रहना, लेट योर वर्क स्पीक। और हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नहीं पता मेरा यूट्यूब वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बट अभी मैं अपने वर्क एथिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, अपना कि और काम करना है। एंड वो डिल्यूजन में कहीं ना कहीं जी रहा हूँ कि भाई यही मेरे पास बचा है, यही करना है, इसको किसी तरह भी वर्क कराना है। क्योंकि अगर मैं अपने फैमिली बिजनेस में करता रह गया तो मैं बहुत बर्नआउट हो जाऊँगा। मुझे ये यूट्यूब में मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा होता नहीं है, मेरे को गोल्स से ऑब्सेशन नहीं था, और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इससे मुझे ऑब्सेशन आ रही है। देखो जैसे जब हम छोटे थे, जब मैं छोटा था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मुझे
जैसे लोग कहते थे कि भाई तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तुम्हारा सपना क्या है। तो बचपन से मैं सबका यही सुना हूँ, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। मतलब मैं कभी, देखो तुम्हारा अगर ये है ड्रीम तो भाई वो बहुत अच्छी बात, तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, बट मैं कभी नहीं कनेक्ट कर पाता था इन सब चीज़ों से। मुझे बचपन से ही कभी वो जॉब वाला आइडिया नहीं पसंद आता था कि भाई सुबह से लेकर शाम तक एक जॉब करनी है। कुछ लोग तो घर से दूर जाके करते हैं, मजबूरी वाली बात अलग है, बट वो स्क्रिप्ट क्यों फॉलो करनी है। इवेंचुअली मैं कर भी रहा था क्योंकि मुझे अपने ड्रीम्स नहीं पता थे। मैं MBA करने वाला था, बट किस्मत ने मुझे यहीं रोक लिया। कहीं ना कहीं डेस्टिनी ही थी मुझे लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी था। MBA करने वाले थे, बाहर जाने वाले थे, मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो रुकना पड़ा। तो उसके बाद जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो यार मैं सही बताऊँ मैं बहुत कनेक्टेड फील कर पा रहा हूँ। मुझे सुबह उठ के एक पर्पस रहता है कि हाँ वीडियो बनानी है, ये करना है, वो करना है। और ये मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करता हूँ, एडजस्ट होता है कि मन नहीं करता है, लेकिन जब करो ना तो बहुत कनेक्टेड फील होता है। तो आई थिंक मैं इसको परस्यू करूँगा और लॉन्ग टर्म में भी। और अभी मेरे मन में यही डिल्यूजन में मैं हूँ कि भाई इसको वर्क कराना मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सही बताऊँ ना, मैं फैमिली बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है मैं लॉन्ग टर्म नहीं कर पाऊँगा। अभी तो मतलब अपना बजट मीट कराने के लिए मुझे करना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में मैं बर्नआउट हो जाऊँगा। देखो पता नहीं मैं क्या है कि छोड़ना है कि करना है फैमिली बिजनेस का, बट अभी मेरा फोकस प्रॉपर यूट्यूब पे है। थोड़ा बहुत बिजनेस सीख रहा हूँ बट इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी। यही मैं कहूँगा भाई तुम भी, बहुत होता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं उनके ड्रीम्स, उनके पर्पस। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, तुम्हें ट्राई करनी पड़ेंगी चीज़ें। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी। मैंने अभी जब से मेरा कॉलेज ये हुआ था, कॉलेज नहीं जा पाएंगे, तो मैं कॉपी राइटिंग ट्राई कर रहा था कि चलो कॉपी राइटिंग करके देखते हैं, बट वो भी उतना जमा नहीं। फिर कंटेंट तो मैं पहले ही बनाता था, वो तो उतना कंसिस्टेंट नहीं था। बट ये एक ड्रीम सा लग रहा है कि मुझे भाई, मैं ये फिज़िक बनाता हूँ, ये वर्कआउट करता हूँ ना, तो ये बहुत मैं कनेक्टेड फील करता हूँ खुद से कि हाँ भाई इसी चीज़ के लिए मैं बनाऊँ। तो अभी मेरा माइंडसेट यही है कि इसको और बड़ा करना है, इसको और ग्रो करना है, ये यूट्यूब और ये सब। अभी कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, आई नो, बट अभी मेरे पास यही फ़ोन है, ऐसा ही कैमरा है। धीरे धीरे हम अपग्रेड करेंगे, पैसे भी सेव करूँगा अच्छे फ़ोन के लिए। सो मैं यही कहूँगा भाई, ग्राइंड करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो भाई। यही उम्र है, यही अभी तुम कर सकते हो, क्योंकि एक बार तुम्हारी शादी हो गई तो सब बर्बाद ही हो जाता है। बर्बाद क्या मतलब, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तुम अपने सपनों को उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। बट अभी मेरे पास टाइम है, मैं 22 ईयर्स का हूँ और मुझे 1-2 साल में कुछ बड़ा करना है इस यूट्यूब के लिए, कंटेंट क्रिएशन में, और अपने आप को एक बढ़िया इंसान बनाना है, एक अच्छी फिज़िक बिल्ड करनी है। और भी बहुत सपने हैं, धीरे धीरे अकॉम्प्लिश करेंगे। बहुत बड़े सपने हैं भाई, डर भी लगता है कि कर पाऊँगा कि नहीं, सेल्फ डाउट्स भी आते हैं, बट ठीक है, अपने को उस इल्यूजन में रखा हूँ मैं कि हाँ भाई कर लूँगा मैं सब कुछ। अभी भी मुझे मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है ब्लॉग्स में मैं क्या दिखाऊं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अभी बहुत यंग क्रिएटर्स के देख रहा हूं, जो भी नए हैं, वो भी जो नए क्रिएटर्स उनके देखता हूं ब्लॉग्स, तो थोड़ा बहुत सीख रहा हूं कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे मैं ऐड कर रहा हूँ, अब पता नहीं जो भी है। सो अभी इतना ही मैं कहूँगा। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम्हें एक हैबिट के बारे में बताया था, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इस हैबिट एक नहीं है, आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में एक और हैबिट मैं बताऊंगा, एंड दैट इज़ रीडिंग। सो अभी पिछले कुछ सालों में जो मैंने और भी एक बढ़िया हैबिट जो डेवलप करी है वो है रीडिंग की। मैं स्कूल टाइम से ही मतलब मुझे शौक लग गया था रीड करने का। एक्चुअली मैं कभी ऐसा था नहीं कि मुझे बहुत पसंद थी, मैंने डेवलप करी है, और कोई भी डेवलप कर सकता है टाइम के साथ। तो मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मैं फिक्शनल बुक्स नहीं पढ़ता, मेरे को सेल्फ हेल्प में ज़्यादा मज़ा आती है, लोगों एक्सपीरियंसेस पढ़ने में जो शेयर करते हैं अपनी बुक्स में। एंड सिर्फ यही एक एटॉमिक हैबिट्स नहीं, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, और भी मेरे पास बुक्स हैं, तो दिखा रहा हूँ। ये मैंने पढ़ रखी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द पाथलेस पाथ, मैन सर्च फॉर मीनिंग, माउंटेन इज यू, थिंक लाइक अ मंक, और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और भी बुक्स हैं, लेकिन यार पता नहीं कहाँ खो गई हैं। मेरे पास 3-4 और बुक्स पढ़ी थी। तो अभी मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा हूँ, बिकॉज
ये सारी मैंने पढ़ ली हैं, तो मुझे कुछ नया पढ़ना था एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ अप्लाई करूँ। एटॉमिक हैबिट्स में तुम्हें हैबिट्स के बारे में बताते हैं कि हैबिट्स तुम्हें कैसे बिल्ड करनी है, और सबसे बेसिक चीज़ उसमें बताई है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हैबिट्स तब तक नहीं तुम बिल्ड कर पाओगे जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज करते। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम अपने आप को फॉर एग्जांपल मास्टरबेशन लेते हैं, अगर तुम अपने आप को एज अ फैपर देखते हो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, तो तुम फैप करोगे ही करोगे। तुम चाहे अपने आप को जितना रोक लो, ये नो फैप स्ट्रीक पे जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम नो फैप स्ट्रीक पे जा ही इसलिए रहे हो कि तुम फैपर हो, समझ रहे हो। तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं आई डोंट फैप, अपने आप को तुम्हें समझाना पड़ेगा। फिर धीरे 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 वो चीज़ें तुम्हारे अंदर से चेंज होती है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें बताता है कि नॉट अ फैप कर दो, तुम कम मास्टरबेट करोगे, धीरे धीरे एकदम ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं ऑथर इस चीज़ के लिए कि दो लोग हैं, दो लोगों को सिगरेट ऑफर करी गई। एक बंदा कहता है कि आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, तो ये क्या दर्शा रहा है कि वो अभी भी अपने आप को एज अ स्मोकर समझता है, तो वो कोशिश कर रहा है स्मोक क्विट करने की। बट जो दूसरा पर्सन है वो कहता है कि आई डोंट स्मोक, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को नॉन स्मोकर ही देखता है कि उसने स्मोकिंग क्विट कर दिया है। इससे तुम्हारा उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाता है कि हाँ मेरी आइडेंटिटी एज अ स्मोकर नहीं है। सो जो लोग अपनी हैबिट्स बिल्ड करने में स्ट्रगल करते हैं उनके लिए ये एक बेसिक चीज़ है एंड ये काफ़ी सच है, क्योंकि मैं अपने आप को एज अ एथलीट देखने लगा हूँ, इसलिए मेरे लिए जिम जाना है एक बहुत सबकॉन्शियस चीज़ होने लगी है। एथलीट मतलब कि मैं अपने आप को एज अ वैसा पर्सन देखता हूँ जो जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जो बहुत अच्छा कर लेता है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब सुबह उठने की बारी आई, सुबह उठ के जिम जाने की, मैं और चीज़ें भी करने के लिए प्लान बनाता था सुबह। जैसे पढ़ने के लिए मैं कभी नहीं उठ पाया, पढ़ने के लिए सुबह कभी हुआ ही नहीं, बट जिम जाना था तो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, अपने आप नींद हो जाती है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वैसी है कि हाँ मैं एक जिम गोअर हूँ, मैं एक जिम डैड हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी है तो उसी का रहा हूँ, मेरी हैबिट बिल्ड हुई है। तो अपनी आइडेंटिटी से बनना शुरू करो। तुम हैबिट बिल्ड करने से पहले अपनी आइडेंटिटी पे जाओ पहले, कि तुम अपने आप को देखते कैसे हो एज अ पर्सन। वो सबकॉन्शियसली भी हो सकता है, मे बी तुम्हें अपने आप से ना पता हो, तुम्हें सबकॉन्शियसली वो फील हो, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए यही तुम कर सकते हो कि वही चीज़ को फोर्सफुली रिपीट करो ताकि तुम्हारी वो हैबिट बिल्ड हो। आई होप मैंने तुम्हें सही समझाया होगा, क्योंकि मुझे जैसे समझ आ रहा है मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। सो रीडिंग एक हैबिट है जो तुम्हें बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डूम स्क्रॉलिंग इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ तुम अपने आप को ओवर सिमुलेट कर रहे हो भाई। एटलीस्ट इससे ओवर सिमुलेट करोगे तो एटलीस्ट चीज़ तुम्हारे माइंड में रहेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, तो जो मैं अभी ये कर रहा हूँ ये गलत है या सही है। तो सीखते रहो भाई, बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। आई एम ग्रेटफुल कि मैंने ये हैबिट बिल्ड करी है, तुम भी बिल्ड करो, कोशिश करो और अच्छा करो अपनी लाइफ में। एंड करते हैं यहीं तक, यहाँ ये व्लॉग। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, तब तक मेहनत करो, पढ़ते रहो।